Hello students, welcome to JPIC Digital Study. Today we are going to read about the lesson of prose. We are not afraid to die if we can all be together. In this lesson, the writer Gordon Cook and Ellen East has described about the sea journey of a 37 years old businessman with his daughter and his son and his spouse. They skilled themselves for the journey of that very sea. For this, they prepared themselves in the British Sea and go on a journey. So, the writer Gordon Cook was a Canadian player and Ellen East was a trainer. Both of them gave their participation in this essay. Ellen East has founded a multi-academic trust, Central Academic Trust. They were the very good person. In this essay, they described how that businessman saved his life and his spouse too at the time when the sea waves destroyed their ship. How they came to the source of the ship. In this lesson, it was described by them. So let's see your lesson and hear carefully. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susan 7 and I set sail from the Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. In this very line, the writer wants to describe that the person, the businessman who was 37 years old, went to a sea journey with his spouse and his son Jonathan and daughter Susan, who were 6 and 7 years old, and they went on to the ship was made by the Captain Jonathan Cook 200 years ago. 200 साल पहले जो जोनाथन कुक के द्वारा प्लाईमाउथ से जहाँ से वो 200 साल पहले उन्होंने समुद्री यात्रा के लिए प्रस्थान किया था, वहीं से बिजनेसमैन जो 37 वर्ष का था अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. क्योंकि वह कहते हैं कि मैं जो कि एक 37 वर्ष का बिजनेसमैन हूँ और मेरी पत्नी दोनों ने बहुत पहले ही एक स्वप्न देखा था कि हम एक समुद्री यात्रा पर प्रसिद्ध खोजकर्ता कैप्टन जोनाथन कुक जो थे प्रसिद्ध खोजकर्ता, उनका अनुसरण करते हुए समुद्री यात्रा पर जाएंगे. एंड for the past 16 years we had spent all our leisure time. In the past 16 years when we had the time to do something, we have skilled ourselves for this very voyage. और कहते हैं कि जो मेरे पास पिछले 16 वर्षों में जो मेरा बचा हुआ समय हुआ करता था, मेरे पास खाली समय होता था, मैं ब्रिटेन के समुद्र में अपने आप को उस समुद्री यात्रा के लिए तैयार करने के लिए अपने में कुशलता, अपने को उसके कुशल बना रहा था, अपने में एक एबिलिटी गेन कर रहा था. Our boat, Wavewater, a 23-meter, 30-ton wooden hug beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. And the businessman thinking described by the writer that very person whose ship was like a big ship, about 23 meters and 30 ton weight. और कहते हैं कि जो बिजनेसमैन था उसकी जो नाव थी वेव वाटर, वह 23 मीटर लंबी 30 टन भारी लकड़ी की बनी हुई सुंदर नाव थी जिसको कि बिजनेसमैन ने बनवाया था. एंड हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इट, और उसको बनाने में कई महीने बिताए थे. it out and testing in the roughest weather we could find. और वह कहते हैं कि जो भी हमें सबसे खराब मौसम मिला
उस मौसम में हमने इस नाव का परीक्षण किया था। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली as we sailed down the west coast of America to Cape Town. The businessman said that our first step of journey from the coast of America to Cape Town means अफ्रीका के तटों से केप टाउन की यात्रा में हमारी यात्रा का पहला चरण बीता और हमने उस बीच में 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा बड़ी खुशहाली के साथ पूरा किया। There before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Herb Sizzler। और वो कहते हैं कि वहाँ से आगे पूर्व की ओर बढ़ने के लिए हमने 2 नाविकों को अपने साथ लिया, जिनका नाम लैरी विजिल तथा स्विस हर्ब शैगलर था। To help us tackle on of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean। दक्षिणी हिंद सागर जो कि विश्व का सबसे खतरनाक सबसे तूफानी समुद्र है, उसमें सहायता के लिए हमने उन दोनों व्यक्तियों को अपने साथ लिया हुआ था। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our mainmast. And the next day, the businessman had faced that disaster of the sea water, the waves. राइटर बताता है कि जो बिजनेसमैन था केप टाउन से अगले दिन जब यात्रा करते हुए वह निकला तो उसे समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा। यद्यपि वह उस तूफान से भयभीत नहीं था, लेकिन उस समय जो समुद्र में उठने वाली 15 मीटर ऊंची ऊंची लहरें थी वह उसको डराने वाली थी। लेकिन फिर भी उसे उस समुद्री तूफान से कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी जो शिप थी उसका परीक्षण पहले किया हुआ था। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree, New Year's Day. Saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. December 25, it was the time when the businessman was about 3,500 kilometers far from the Cape Town. 25 दिसंबर को जो बिजनेसमैन है वह अपनी नाव के साथ केप टाउन से लगभग 3500 किलोमीटर की दूरी पर था और वह अपने मन में विचार कर रहा था कि आने वाले नव वर्ष पर जब हम नया साल मना रहे होंगे तो निश्चित रूप से जो मौसम है इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा और हमें उस परिवर्तित हुए मौसम से कुछ न कुछ प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन मौसम तो परिवर्तित हुआ और वह अच्छा ना होकर के और ही भयावह हो गया और ही बुरा हो गया। At dawn on January 2, the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jet and were still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. To slow the boat down, we dropped the storm jet and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double-lashed everything, went throughout life raft drill, attached life vests, donned oilskins and life jackets, and waited. At dawn on January 2nd means 2 जनवरी के सूर्योदय के समय the waves are enormous. जो लहरें थी वह बहुत ही विशाल थी, बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी। We were sailing with only a small storm jib. और वह कहते हैं कि हम तूफानी यात्रा से बचने के लिए एक तिकोने त्रिपाल के साथ उस समय थे and were still making 8 knots. और अब भी 8 मील की गति से चल रहे थे। And as the ship rose to the top of each wave, और जब हमारी शिप उस
ऊंचाइयों पर पहुंचती थी तो वहां से हम उस अथाह सागर को, विशाल सागर को वहां से देखते थे। चारों ओर समुद्री जल ही हमें दिखाई पड़ता था। एंड द स्क्रीमिंग विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो चीखती हुई हवाएं चल रही थी सरसराहट के साथ, और उनके साथ जो फुहारें थी वह हमें परेशान करने वाली थी, हमारे कानों को कष्ट देने वाली थी। And to slow down the boat down, we dropped the storm jib and laid a heavy mooring rope in a loop across the stern. वह कहते हैं द बिजनेस की उस तूफान से बचने के लिए जो हमारा पहले नाव जो सिप हुआ करती थी उसमें इस तरह से तिकोना त्रिपाल बांधा जाता था, टूटा कपड़ा बांधा जाता था। कहते हैं कि मैंने तूफान से बचने के लिए उस कपड़े को जो था उसको थोड़ा सा नीचे किया और रस्से की मदद से उसको थोड़ा और टाइट किया, कसा। एंड देन द डबल लेस्ड एवरीथिंग, और वो कहते हैं कि उस तूफान से बचाव के लिए हमने पहले की अपेक्षा उसको दोहरी मजबूती के साथ बांध दिया। एंड वेंट थ्रू द लाइफ राफ्ट ड्रिल, और जो लाइफ राफ्ट ड्रिल मींस जीवन रक्षी बेड़ा जो था उसको, उसकी जो तारें थी उसको हमने कस के बांधा, और जो लाइफ जैकेट था जो पानी में कूदने के लिए लोग यूज किया करते हैं जिससे लोग डूबते नहीं हैं, उस लाइफ जैकेट पहन लिया और वेट करने लगे कि कब यह मौसम अनुकूल होगा। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। राइटर बताता है कि बिजनेसमैन जो बातें उसको बताई, वो कहते हैं कि जो 6 बजे का जो समय था अबाउट 6 PM विद एन ओमिनस साइलेंस, मींस एक अनिष्ट, जैसे होता नहीं कि कोई दुर्घटना घटित होने वाली हो, बुरा समय आने वाला, उसके पहले का जो साइलेंस होता है, जैसे कहते हैं तूफान के पहले की शांति, उस तरह की शांति हम लोगों को महसूस हुई और लगभग आने वाली विपत्ति का समय हो गया था। द विंड ड्रॉप एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, हवाएं थम गई थी और आकाश जो था वह काला हो गया था। Then came a growing roar and an enormous cloud toward aft of the ship, और वह कहते हैं कि तब यकाएक तेज दहाड़ के साथ, तेज गरज के साथ एक मोटा सा बादल आसमान में दिखाई पड़ा। With horror I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen। और बताते हैं राइटर कि बिजनेसमैन के एक्सपीरियंस को रियलाइज करता है और कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह कोई बादल नहीं है बल्कि एक विशालकाय लहर है जो कि हमारी शिप के ऊपर तूफान के साथ आ रही है। एंड वह ऐसी लहर है जो हमने अभी तक कभी भी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। यह कैसी थी? यह बिल्कुल वर्टिकल लहर थी और लगभग 2 गुनी शक्तिशाली थी जितना कि मैंने आज तक की समुद्री लहरों को देखा था। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और एक भयावह चोटी लहरों की हमारे जहाज से टकराने वाली थी। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. But then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. The roar increased to a thunder. जो गरज थी वह गड़गड़ाहट में बदल गई थी। And the stern moved up the face of the wave. और नाव का जो पिछला हिस्सा था वह लहर की ओर उठ गया था, बढ़ गया था। And for a moment, और एक क्षण के लिए I thought, मैंने सोचा we might ride over it, कि हम उस नाव के साथ उसी लहर के ऊपर चढ़ ही जाने वाले हैं। And but then a tremendous explosion shook the deck. लेकिन एकाएक भयंकर के साथ नाव का जो डेक था, नाव जो थी वह पूरी तरह से हिल गई, क्योंकि वह लहर के साथ मेरी पूरी नाव जो थी वह पूरे झटके खाने लगी, हिलोरे खाने लगी। एंड द ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और जो हरा और सफेद रंग का जो समुद्री जल था
वह हमारी नाव में आ गया। एंड माई शिप स्मैश्ड इनटू द व्हील, और हमारी जो नाव थी वह गोल गोल चक्कर खाने लगी। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वाटर, और मैं अपने आप को लहरों के बीच में, सिंक मीन्स डूबने के जैसा महसूस करने लगा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने अपनी आने वाली मृत्यु को एक्सेप्ट कर लिया था, ग्रहण कर लिया था, मान लिया था कि मेरी मृत्यु निकट है। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे जैसे मैं बेहोश होता जा रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे बड़ी शांति, पूरी तरीके से मैं शांत हो गया था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर a few meters away. Wave water was near capsizing, her mass almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrails and sailed through the air into wave water main boom. Some sequent wave tossed me around the deck like a rag roll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up and the stern for the next wave and hung on. Unexpectedly means बिना किसी पूर्व सोच के, जो मेरी नाव थी, जो मेरा सिर था, हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, एकाएक पानी के बाहर निकला, उछल गया। A few meter away, मैंने देखा कि थोड़ी ही मीटर की दूरी पर वेव वॉकर नाम की जो मेरी नाव थी, जहाज थी, was near capsizing, her mast almost horizontal, लगभग उलट सी गई थी। Then a wave hurled her upright, तब एक लहर ने उसको फिर से उलट दिया, फिर वह सीधी हो गई। And then a wave, my lifeline jerked out and I grabbed the guardrails. कहते हैं कि मेरा जो जीवन रक्षक तार थे वो एकाएक कस गए और मैंने उसको पकड़ने का प्रयास किया। And sailed through the air into wave water main, और उस तारों के सहारे एकाएक मैं तैर करके अपनी उस नाव तक पहुंचा। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. और वो जो लहरें थी, उन्होंने जैसे कपड़े का गुड्डा बना होता है, उस तरह से मुझे इधर उधर पटक रही थी। मीन्स जो तेज तेज लहरें चल रही थी, उनके साथ मैं भी इधर उधर उसी नाव में पटका जा रहा था, हिलोरें खा रहा था। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, मेरा जो बायां जबड़ा था वो, मेरी बाईं पसलियां जो थी वह चटक गई थी, और मेरा मुंह खून से और टूटे दांतों से भर गया था। Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. जैसे तैसे मैंने पहिया ढूंढा और अपनी नाव को, जैसे तैसे मैंने पहिया ढूंढा और अपनी नाव को लहरों के सहारे सीधा किया, और उस व्हील को जो मुझे प्राप्त हुई थी उसको मैंने सीधा रखा। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। चारों तरफ पानी ही पानी था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी नाव पानी के ऊपर ना होकर के पानी के अंदर चली गई है। बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन मैं अपने संतुलन चक्र, जो मेरा नाव को चलाने वाला जो मेरा व्हील था, उसको मैं छोड़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. एकाएक जो आगे का हिस्सा था वह समुद्र के ऊपर आया और मुझे मेरी पत्नी मैरी दिखाई पड़ी। We are sinking, she screamed, और वो चीखी कि हम डूब रहे हैं। The decks are smashed, we are full of water. उसने कहा कि नाव का जो डेक है वह नष्ट हो चुका है, and we are full of water, और हम पूरी तरह से पानी के अंदर हैं। Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. I shouted as I scrambled for the hatch.
जैसे ही मैंने उसको देखा, मैं जोर से चिल्लाया, टेक द व्हील, मीन्स इस चक्र को, इस संतुलन चक्र को पकड़ो और सुरक्षित होने का प्रयास करो। लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमेन, broken timbers hung crazy angels, and all step and sideward, inverse clothes, crockery, charts, things and toys floated about in deep water. लैरी और हर्ब जो दो नाविक थे वह पागलों के समान पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि नाव में पानी भर गया था और वो पंप के सहारे उस पानी को नाव से बाहर निकाल रहे थे। और चारों जो हमारे साथ सामान थे वो समुद्र में इधर उधर बह रहे थे, क्योंकि पानी हो गया था, इधर उधर वो तैर रहे थे। Dear students, is your lesson. Read the chapter with the help of this video. We will meet with the second part of this lesson in the next video. Till then, bye bye.